So my dear students, welcome to my channel EduFlix Academy. So till now we have studied the definition of weed and some of the facts related to weed, and then we studied the characteristics of weed and harmful effect of weed. So in the today's lecture we will be studying about the beneficial aspect of weed. The beneficial effect of weed, you can also say what are the benefit of weed. So we will continue with the topic. As we know, what are the benefits? Till now we have seen the harmful effect of weed, that how weed are harmful to us, how weed is causing harm to our agriculture produce, how weed is creating harmful in while giving irrigation, while doing agricultural operations. So now we will be studying about the beneficial effect of weed. So what is the first point here written here? In spite of all the difficulties caused by weeds, they can offer some beneficial properties, particularly when occurring at low densities. So here it has been mentioned that whatever the difficulties caused by weeds, but they also give us some beneficial properties. Okay, so what are the beneficial properties that is mentioned below? It helps to conserve soil moisture and prevent erosion. First point is that it conserves the soil moisture, it maintains the moisture in the soil, and it also helps to prevent the erosion. Okay, other line in this particular point is a ground cover of weeds will reduce the amount of bare soil exposed, helping to conserve nutrients, particularly nitrogen, which could otherwise be leached away, especially on light soils. As you can see here, these are the some beneficial एस्पेक्ट ऑफ वीड, दैट वीड जो होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं ये लोग, जो बेयर सॉइल होते हैं उस केस में क्या करते हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करते हैं. स्पेशली नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजर विच कैन बी लीच्ड अवे easily on light soils. So these are the very important benefit of weed. Second point is food and shelter can be provided for natural enemies of pests and even alternative food sources for crop pests. The actual presence of weed cover may be a factor in increasing the effectiveness of biological control of pests and reducing pest damage. वीड के और बेनिफिट क्या है कि फूड एंड शेल्टर प्रदान किए जाते हैं कोई किसको, जो नेचुरल इनेमीज होते हैं हमारे क्रॉप्स को. तो कुछ ऐसे केस में क्या होते हैं कि वीड जो होते हैं वो हमारे इंसेक्ट पेस्ट को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक उनको अल्टरनेटिव फूड सोर्स मिल जाता है. ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, वीड कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोइंग कंडीशंस इन अ फील्ड, फॉर एग्जांपल ऑफ वाटर लेवल्स, कंपैक्शन एंड पीएच. वीड क्या होते हैं, वीड also indicate कि whether there is a requirement of water या what type of soil is there, either it is a hard soil or it is a loose soil, and it is also used to check the pH of soil. So in this again we will come to see here the next benefit of weed is that weed can be an important source of food for wildlife, especially birds. So weed is beneficial to birds in case of food purpose. Okay, wildlife, some of the wildlife birds are also there which are dependent on wheat. Okay, bird population have been declining on farmland over the last few decades and leaving a weed as a resource. weed भी कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं, they also act as a habitat for some of the birds. Okay, so in next slide we will be seeing, okay, in next slide we will be seeing the classification of weed. Okay, how the weed has been classified. Okay, and this is very important. So as it has been mentioned here that out of 2,50,000 plant species, weed constitute about 250 species which are prominent in agriculture and non-agriculture system. Under world conditions about 30,000 species is grouped as weed. 2,50,000 प्लांट स्पीसीज हैं, जिसमें से भी 250 क्या है, वीड कंस्टिट्यूट होते हैं. उसमें वीड वाले स्पीसीज आते हैं, जिसमें से जो बहुत एग्रीकल्चरल
और नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रोमिनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीड स्पीसीज होते हैं। और अंडर वर्ल्ड कंडीशंस, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उस केस में क्या है, 30,000 स्पीसीज को वीड के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। सो हमें स्टडी जो करना है कि वीड का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है। सो फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग दैट पॉइंट। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हम लोग और दूसरे टर्म से क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी लाइफ स्पैन मतलब जीवन चक्र के आधार पे। ओके, सो वीड्स आर क्लासिफाइड एज एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स एंड पेरेनियल वीड्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एनुअल वीड्स क्या होते हैं। एनुअल वीड्स का मतलब वार्षिक खरपतवार, ऐसे खरपतवार विच live only for a season or a year and complete their life cycle in that season or year are called as annual weeds। ऐसे खरपतवार जो अपने वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में सीड का जो प्रोडक्शन होता है एंड देयर जो और लास्ट में क्या होते हैं, वो उनका जीवन चक्र डेड हो जाता है, मतलब वो एक साल में ही अपने पूरे जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे वो हम क्या बोलते हैं, एनुअल वीड्स। इसमें जैसे और भी फर्दर पॉइंट्स लिखा हुआ है, इनके जो एनुअल वीड्स होते हैं उनके क्या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि दीज आर स्मॉल हर्ब्स विथ शैलो रूट्स एंड वीक स्टेम। ये ऐसे वीड्स होते हैं जिनके जो हर्ब्स होते हैं बहुत ही सैलो होते हैं, मतलब इनके जो रूट्स होते हैं ज़्यादा डीप नहीं होते हैं और जो स्टेम होते हैं कमज़ोर होते हैं। प्रोड्यूसेज सीड्स इन प्रोफ्यूजन एंड मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉमनली थ्रू सीड्स। इनके जो प्रोपोगेशन होते हैं जनरली किसके थ्रू होते हैं, सीड्स के थ्रू होते हैं। आफ्टर सीडिंग द एनुअल्स डाई अवे एंड द सीड्स जर्मिनेट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट जनरेशन। फिर क्या होते हैं, सीड्स का जो एनुअल्स होते हैं वो डाई अवे डेड कर जाते हैं, देन आफ्टर अगेन नेक्स्ट ईयर में उनका जनरेशन होता है। और इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, आप लोग को आगे भी ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे अगले सेमेस्टर में भी। तो अगर आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आगे फर्दर आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। तो फर्दर इसमें सब टाइप्स क्या है इसके, मॉनसून एनुअल भी होते हैं। मॉनसून एनुअल का मतलब ऐसे एनुअल वीड्स जो जनरली रेनी सीजन में ही आते हैं। ओके, जब वर्षा होती है खूब तो उस समय वो वीड खरपतवार हमारे फसल के साथ या किसी भी फील्ड में उगते हैं। जैसे कि कौन से हैं, कॉमेलिना वेंगलेंसिस या बोहेरेविया इरेक्टा। दूसरे कौन से हैं इसमें, विंटर एनुअल, ऐसे खरपतवार जो ठंड के मौसम में जनरली हमारे फसल के साथ उगते हैं। वो कौन से हैं, चेनोपोडियम एल्बम, बहुत ही कॉमन है, ये बथुआ घास भी इसे बोलते हैं। कुछ आप लोग इसमें देख सकते हैं जो ये वीड के इमेज है, कॉमलिना वेंगलेंसिस को हम लोग हिंदी में केना या कृष्ण घास भी बोलते हैं, बोहेरेविया इरेक्टा ऐसे होते हैं, और चिनोपोडियम एल्बम जिसे हम बथुआ घास भी बोलते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों, अभी तक हमने एनुअल वीड्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बाइनियल वीड्स। बाइनियल वीड्स कैसे होते हैं, इट कंप्लीट्स द वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट सीजन, फ्लावर एंड सेट सीड्स इन द सक्सीडिंग सीजन एंड देन डाइज। क्या इसमें लिखा हुआ है कि पहले सीजन में क्या करते हैं, दे कंप्लीट देयर वेजिटेटिव ग्रोथ, इन सेकेंड सीजन दे सेट सीड्स एंड लास्ट क्या करते हैं, फाइनली दे डाइज एंड दे आर फाउंड मेनली इन नॉन क्रॉप्ड एरियाज। और जनरली ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में वेयर देयर इज कल्टिवेशन प्रैक्टिसेज आर नॉट टेकिंग प्लेस। और इनके कुछ एग्जाम्पल है, अल्टरनेंथेरा इचिनाटा और डायकोस कैरोटा। डायकोस कैरोटा को हम लोग गाजर घास भी बोलते हैं। अगला कौन सा इसमें है क्लासिफिकेशन, पेरेनियल्स। पेरेनियल्स का मतलब इसमें लिखा हुआ है, वैसे भी बाइनियल्स का मतलब द्विवर्षीय, एनुअल्स का मतलब एक वर्षीय, और पेरेनियल्स का मतलब ऐसे खरपतवार जिनके लाइफ साइकिल 2 या 2 से अधिक साल तक होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ओके, जैसे कि एज वी कैन से हियर, पेरेनियल लिव फॉर मोर देन 2 years एंड दे में लिव ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली। ये 2 से अधिक साल तक भी क्या हो सकते हैं, ये सर्वाइव करते हैं या कर सकते हैं। दे अडेप्टेड टू विथ स्टैंड एडवर्स, ये किसी भी कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। दे प्रोपगेट नॉट ओनली थ्रू सीड्स बट ऑल्सो बाई अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, राइजोम्स एंड ट्यूबर्स। ये जरूरी नहीं है कि दे विल बी ओनली प्रोपगेटिंग बाई सीड्स, दे आर ऑल्सो प्रोपगेटेड थ्रू स्टेम के माध्यम से, रूट के माध्यम से, या राइजोम्स या ट्यूबर्स के माध्यम से भी इनके प्रोपगेशन होते हैं। हेंस दे आर, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिंपल पेरेनियल्स, प्लांट प्रोपगेटेड ओनली बाय सीड्स, वो किसे हम बोलेंगे, सिंपल पेरेनियल्स, जिसके एग्जांपल है सोनचस आर्वेंसिस। दूसरा क्या है आपका, ये बल्बस पेरेनियल। बल्बस पेरेनियल मतलब बल्ब्स के माध्यम से, जो भी प्लांट्स विच पॉजेज अ मॉडिफाइड स्टेम विथ स्केल एंड रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम बल्ब्स एंड सीड। ओके,
वो किस में आते हैं, एलियम स्पीसीज उसके एग्जाम्पल होते हैं। कॉर्म पेरेनियल्स, जो plants that possess a modified shoot and fleshy stem and reproduce through corm and seeds। ओके, वो उसके एग्जांपल कौन से हैं, तिमोथी, फैलियम, प्राटेंसे। अगला कौन सा है आपका इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन, क्रीपिंग पेरेनियल्स रिप्रोड्यूस्ड थ्रू सीड्स एज वेल एज वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पेरेनियल्स, जो क्रीपिंग मतलब जो हमारे मिट्टी पे क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। उसमें भी फर्दर कौन कौन से हैं, राइजोम का मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उसके माध्यम से कौन से वीड प्रोपिगेट होते हैं, वह जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है सोरगम हाल्पेंस। और दूसरा कौन है, स्टोलन प्लांट सेलिंग हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग स्टेम। एक जो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं वर्टिकल, क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो स्टोलन में कौन से एग्जांपल आ गए, साइनोडोन, डेक्टाइलन। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अगला हमारा पोर्शन कौन सा है, इसमें कुछ आप लोग इसमें एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल आपका कौन सा है, यहाँ पे आपने अभी देखा सोनचस आर्बेंसिस, इसका इमेज फैलियम प्राटेंस का, सोरगम हाल्पेंस का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब ऐसे खरपतवार जो किस क्षेत्र में जनरली वो ऑकर होते हैं। पहला क्या है, वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड्स, मतलब ऐसे खरपतवार जो हमारे ओनली फसल के साथ ही ग्रो होते हैं। जैसे द मेजोरिटी ऑफ वीड्स इन्फेस्ट द कल्टिवेटेड लैंड्स एंड कॉज हिंड्रेंस टू द फार्मर्स फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ऐसे खरपतवार जो हमारे फसल फार्मर के खेत में क्या करते हैं, जो फार्मर हमारे क्रॉप उगाते हैं उसमें क्या करते हैं, दे क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे फैलरिस माइनर इन व्हीट, इसे हम लोग फैलरिस माइनर को हम लोग गेहूं का मामा भी बोलते हैं, गेहूं के साथ ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। दूसरा क्या है आपका, वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स, मतलब ऐसे खरपतवार दैट इज फाउंड इन पास्चर और ग्रेजिंग ग्राउंड, जहाँ पे हमारे जानवर लोग ग्रेजिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो वैसे वीड्स जो हमारे उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स। थर्ड क्लासिफिकेशन है वीड्स ऑफ वेस्ट प्लेस, ऐसे प्लेस जहाँ पे हम लोग कोई कल्टिवेशन नहीं करते हैं, ओके। जैसे किसी भी नदी नाले के किनारे, किसी भी एरिया जहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं, रेलवे लाइन हो गया, उस जगह पे जो वीड्स वगैरह जो कल्टिवेट हो रहे हैं वो क्या किस में आएंगे, वीड्स ऑफ वेस्ट प्लेसेज में। जैसे कि इसमें एग्जांपल कौन से हैं, गाइनेंड्रोप्सिस, पेनेटोफाइला, कैलाट्रोप्सिस, गिगैंटिया। और लास्ट जो इसमें क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे, वो कौन से हैं, वीड्स ऑफ प्लेग्राउंड, रोड साइड, जो हमारे जहाँ पे भी हम लोग खेलते हैं या कहीं पे भी रोड साइड्स में, कहीं पर रेलवे ट्रैक्स हो गया, एरोप्लेन साइड्स हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गया, उसके आसपास में जो वीड्स जो ग्रो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वीड्स ऑफ प्लेग्राउंड। जिसमें कौन कौन से वीड हैं, और ऐसे वीड के खासियत क्या होते हैं, दे आर यूजुअली हार्डी, ओके, एंड दे आर कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एनी अमाउंट ऑफ ट्रैम्पलिंग। उन्हें हम लोग कितना भी काट दें, कितना भी उन्हें साफ कर दें, फिर क्या होंगे, वो उग जाते हैं। तो ये इसमें एग्जांपल में कौन से हैं आपके, अल्टरनेंथेरा, इचाइनाटा और ट्राइब्यूलस टेरेस्टेरिस। कुछ आप लोग इसके इमेज देख सकते हैं, जो आप लोग कुछ देखे भी होंगे, या इमेज के माध्यम से आप लोग अपना क्लियरिटी दूर कर सकते हैं। जैसे इंडोगोफेरा, इनेफाइला, फिलरिस माइनर है यहाँ पे, गैनेंड्रोप्सिस, पेनेटोफाइला, और दूसरा क्या है, क्लोरोटॉप्सिस गिगैंटिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में कौन कौन से हमारे आते हैं वीड। पहला क्या है, इंडिजिनस वीड। इंडिजिनस वीड का मतलब ऐसे सच काइंड ऑफ वीड्स विच आर ग्रोन या विच आर ग्रोन इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में ही हमारे फसल के साथ क्या होते हैं, कल्टीवेट, मतलब हमारे फसल के साथ ही उगते हैं। वैसे वीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिजिनस वीड बोलेंगे। जैसे कि इसमें लिखा भी है, ऑल द नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री आर कमिंग अंडर दिस ग्रुप। जो हमारे नेटिव कंट्री के वीड होते हैं वो इंडिजिनस वीड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एक्लाइफा इंडिका, एब्यूटाइलन इंडिकम। दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड और एक्जोटिक वीड्स, मतलब ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो दूसरे देश के थ्रू या किसी न किसी वीड के सीड के थ्रू आए होंगे। जब भी वहाँ से सीड वगैरह आया होगा तो उस सीड में वो मिक्स होंगे, या किसी न किसी इंसेक्ट के थ्रू आते हैं जो दूसरे देश के थ्रू हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सच काइंड ऑफ वीड्स आर नॉन एज एक्जोटिक वीड्स। जो इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, फिलरिस माइनर, एकांथस फेरमम, हिस्पीडियम। आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इमेज में कौन कौन से ये जो कुछ वीड हैं जो आपके एक्जोटिक वीड्स में आते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन जो हमारा क्लासिफिकेशन है
based on morphology of the plant. Weeds are also classified into three categories. This is the most widely used classification by weed scientists. ओके, मॉर्फोलॉजी के मॉर्फोलॉजी मतलब उसके जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेम हार्ड होते हैं, किसी के स्टेम सॉफ्ट होते हैं, किसी के लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, किसी के लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, उसे मतलब थिक होते हैं, ठीक है। किसी के जो वीड होते हैं पतले होते हैं, ठीक है। किसी के वीड में वीनेशन जो होते हैं पैरेलल होते हैं, किसी कोई वीड में जो वीनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, अनपैरेलल होते हैं। तो उस बेसिस पे जो वीड का क्लासिफिकेशन हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। एज यू कैन सी हियर कि ग्रासेज में कौन कौन से जनरली आते हैं, ऑल द वीड्स कम अंडर द फैमिली पोएसी। जो फैमिली पोएसी में आते हैं वो किस जनरली ग्रास वाले कैटेगरीज में आते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं आपके, इकाइनोक्लोनम और साइनोडोन डेक्टाइलन। दूसरा जो है सेजेज, द वीड्स बिलोंगिंग टू द फैमिली साइप्रेसी। अंडर दिस ग्रुप द लीव्स आर मोस्टली फ्रॉम द बेस हैविंग मॉडिफाइड स्टेम और विद और विदाउट ट्यूबर्स। इसमें ट्यूबर्स जनरली नहीं रहते हैं और ये क्या होते हैं, द लीव्स आर मोस्टली फ्रॉम द बेस हैविंग मॉडिफाइड स्टेम, मतलब इनके जो लीव्स जनरली जो होते हैं नीचे से ही होते हैं, जो भी स्टेम होते हैं उसके नीचे वाले पोर्शन से ही लीव्स इसके ग्रो होते हैं। इसमें एग्जांपल्स में कौन से हैं आपके, साइप्रस रोटुंडस और फिम्बरस्टाइलिस मिलिएशिया। तीसरे कौन से हैं आपके, ब्रॉड लीफ वीड्स। आपको नाम से इंडिकेट किया जा रहा है कि ऐसे वीड्स जिसके जो लीफ होंगे क्या होंगे, जिनके पत्ती होंगे क्या होंगे, वो ब्रॉड होते हैं। दिस इज द मेजर ग्रुप ऑफ वीड्स एंड एज ऑल द अदर फैमिली वीड्स कम अंडर दिस एक्सेप्ट and that is discussed earlier. All the dicotyledon weeds are broadleaf weeds. The examples are Flavaria australacea, Digra arvensis, Tridex procumbens. Okay my dear students, so next हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे कौन से क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। मतलब हमारे स्टेम के नेचर कैसे, मतलब हार्ड हैं या सेमी वुडी हैं या हर्बेशियस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊडी वीड्स इंक्लूड श्रब्स एंड अंडर श्रब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रश वीड्स, लैंटेना कैमरा। ऊडी वीड्स का मतलब उनके जो स्टेम होंगे दे आर लिटिल बिट हार्ड इन नेचर। सेमी ऊडी वीड्स का मतलब उनके जो स्टेम होंगे लिटिल बिट उससे कम हार्ड होंगे, जैसे क्रोटोन एस्पेर्सिफ्लोरस। और थर्ड वन है हमारा हर्बेशियस वीड्स हैव ग्रीन सकुलेंट स्टेम्स एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑकरेंस। हर्बेशियस का मतलब जिनके स्टेम जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ओके। और जनरली वो क्या कॉमन ऑकरेंस, हर जगह जनरली वो वीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमरेंथस वैराइडिस, जंगली चौलाई जिसे हम बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्दर हमारे क्या है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी या बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस भी आप बोल सकते हैं, ओके। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्पेशल पर्पस पे हैं, जैसे कि पॉइजनस वीड हो गए, पैरासिटिक वीड्स हो गए, एक्वेटिक वीड्स हो गए। नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहे हैं पॉइजनस वीड्स का मतलब ऐसे खरपतवार जो जनरली पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। कोई अगर जानवर उसे ग्रेज कर लेते हैं तो हो सकता है उन्हें बीमारी हो जाए और सडन वो डेड भी कर जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम पॉइजनस वीड पड़ा है। द पॉइजनस वीड कॉज एलिमेंट ऑन लाइव स्टॉक रिजल्टिंग इन डेथ एंड कॉज ग्रेट लॉस। ये लिखा हुआ है, अगर कोई भी लाइव स्टॉक इसे अगर ग्रेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डेथ भी कर सकते हैं या उन्हें ग्रेट लॉस, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीज वीड्स आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विद फोडर और ग्रास। ये क्या होते हैं जनरली जब हम अपने जानवर के लिए जब हम लोग ग्रास या फोडर कट करते हैं तो उसके साथ साथ वो भी क्या हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, मिक्स हो जाने पे क्या होता है, जब हमारे जानवर उसे कंज्यूम करते हैं तो उस केस में उन्हें उसके थ्रू क्या होता है, उन्हें जहर, उस जो भी उसमें वीड होता है उसमें जहर होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है उन्हें हानि पहुंचती है, नुकसान होती है। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, दतूरा फस्टुओसा, दतूरा एस्ट्रोमोनियम, दतूरा मेटल आर पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। द बेरीज ऑफ विथेनिया सोमनिफेरा एंड सीड्स ऑफ एब्रस प्रेकटोरियस आर पॉइजनस। इनके जो सीड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है, पैरासिटिक वीड्स। नाम से आपको पता चल रहा है पैरासिटिक वीड क्या होते हैं, ऐसे वीड जो एक दूसरे वीड पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं द पैरासाइट वीड्स आर either total or partial, which means the weeds that depend completely on the host plant are termed as total parasite
and while the weeds that partially depend on the host plant for minerals and capable of preparing its food from the green leaves are called as partial parasites. टोटल और पार्शियल यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है। टोटल पैरासाइट आप लोग देखते हैं मतलब ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे वीड जो पूरी की पूरी उसी एक ही पार्टिकुलर क्रॉप्स पे बोल सकते हैं या होस्ट प्लांट पे आश्रित रहते हैं। और ऐसे कुछ वीड होते हैं जो अर्ली स्टेज में क्या होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो खुद अपने आप अपना जो सर्वाइवल के जो मेथड होते हैं उसके लिए अपना खुद वो काम करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। टोटल पैरासाइट और पार्शियल, टोटल का मतलब फुल्ली का फुल्ली वो किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, और पार्शियल का मतलब इनिशियल स्टेज में वो किसी प्लांट पे आश्रित रहते हैं, और एज दे ग्रोन अप दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, मतलब उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। कुछ उसके एग्जाम्पल इसी में आपके टोटल रूट पैरासाइट भी होते हैं और टोटल स्टेम पैरासाइट। तो सेम जो रूट पे डिपेंड होते हैं वो रूट पैरासाइट बोले जाएंगे, जो स्टेम पे होंगे वो टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। जो टोटल रूट पैरासाइट जो पूरी की पूरी रूट पे ही आश्रित होते हैं वो कौन से होते हैं, ओरोबैंची, कर्नुआ और टोबैको। ये टोबैको जो क्रॉप होता है पूरी की पूरी, ये जो वीड होता है उसी पे आश्रित होता है अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। और पार्शियल रूट पैरासाइट एस्ट्रिगा ल्यूटिया, जो शुगर केन, जैसे जब ये एस्ट्रिगा ल्यूटिया जब अर्ली स्टेज में होता है तो शुगर केन या सोरगम वाले क्रॉप पे अपना डिपेंडेंस रहता है। जब ये जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो क्या होता है, ये अपना सर्वाइवल खुद से करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ जो क्लासिफिकेशन है एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे खरपतवार जो जनरली पानी या वाटर एरियाज के आसपास में पाए जाते होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर एंड कंप्लीट एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर, जो अपने लाइफ साइकिल या अपना सर्वाइवल कहाँ पानी में करते हैं, उस वैसे वीड को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक वीड्स। दे आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू फर्दर कैटेगरीज। इसमें भी ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, सबमर्ज्ड, इमर्ज्ड, मार्जिनल एंड फ्लोटिंग। ऐसे जो सबमर्ज पूरी की पूरी इसी पार्टिकुलर वाटर एरिया में सबमर्ज हैं, कुछ जो आधा इमर्ज रहते हैं, कुछ मार्जिनल हल्का ऊपर, और फ्लोटिंग जो कुछ ऐसे वीड जो पानी के ऊपर ही रहते हैं। सबमर्ज में कौन से वीड हैं, द वीड्स आर मोस्टली वैस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑल और मोस्ट ऑफ देयर वेजिटेटिव ग्रोथ बीनीथ द वाटर सरफेस। ऐसे खरपतवार जो पूरी के पूरी अपना जो उनका ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है कहाँ जनरली होता है, वाटर सरफेस, वाटर के बीनीथ, पानी के नीचे वाले सरफेस पे ही उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उनका जो रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, दे आर जनरली अंडर द वाटर सरफेस। जैसे कि एग्जांपल में कौन से हैं, यूट्रिकुलरिया, स्टेलारिस, केरेटोफाइलम, डमर्सम। ये सब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस वीड एग्जाम्पल्स इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, कैसे भी हमें ये एग्जांपल्स याद करने हैं, इस एग्जांपल के बेसिस पे क्या होगा, हम लोग इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग इमर्ज वीड। इमर्ज में हमने क्या पढ़ा, दीज प्लांट्स आर रूटेड इन द बॉटम मड विथ एरियल स्टेम्स एंड लीव्स और एट और अबव द वाटर सरफेस। ये कुछ ऐसे वीड होते हैं इमर्ज वीड जो पानी के ऊपरी सतह पे, या इनके जो लीव होते हैं, जो पत्ते होते हैं, स्टेम होते हैं, ये क्या होते हैं, पानी में इमर्ज रहते हैं, और जो कुछ और जो इनके अदर जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग वाला जो एरिया होता है वो वाटर के ऊपरी सतह पे रहता है। द लीव्स आर ब्रॉड इन मेनी प्लांट्स एंड समटाइम्स लाइक ग्रासेज, दिज लीव्स नॉट राइज एंड फॉल इन वाटर। इनके जो लीव्स होते हैं वो पानी में नहीं गिरते हैं। ओके, इन केस ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है आपके, नीलेम्बियम एस्पोसिकम और जोसेफिया रिपेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सीइंग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपके, हमने देखा इसमें इमर्ज वीड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्या है, मार्जिनल वीड्स। मार्जिनल वीड्स का डेफिनेशन क्या है, एज वी कैन सी हियर, मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स आर इमर्ज्ड weeds that can grow in moist saline areas with a depth of 60 to 90 centimeter water. These weeds vary in size, shape and habitat. The important genera that comes under this group are Typha, Polygonum, Cephalanthus, Scirpus। अलग अलग वीड के नाम है। मार्जिनल वीड्स ऐसे वीड होते हैं जो इमर्ज वीड्स के कैटेगरी में आते हैं, और ये इनके जो डेप्थ होते हैं पानी में 60 से 90 सेंटीमीटर के इनके डेप्थ होते हैं। ओके, और ये वेरी करते हैं अपने साइज और शेप में, और इनके कुछ एग्जांपल हैं, टाइफा स्पीसीज हैं,
गोनम है, सेफलेंथस है। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ इजीली देख सकते हैं। जो इनके जो रूट वाले पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और आगे वाले जो इनके जो फ्लावरिंग पोर्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं। मतलब ये लोग एक्चुअली ये इमर्ज वीड के केस में भी आ जाते हैं। लास्ट वन जो आप देख रहे हैं, फ्लोटिंग वीड्स। ऐसे वीड्स आप लोग हर जगह देखे भी होंगे। दीज वीड्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर। ऐसे ये खरपतवार होते हैं जिनके पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग तैरते हैं। और सरफेस आइदर सिंगली और इन क्लस्टर, मतलब एक एक पत्ता एक अकेले वो उस पर तैरेगा, या इन क्लस्टर ग्रुप में भी क्या होते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। सम वीड्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड सम रूटेड एट द मड बॉटम। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कुछ होते हैं वो मड के साथ नीचे में कलेक्ट हुए रहते हैं, क्लम्स में रहते हैं। ओके, लीव्स राइज एंड फॉल एज द वाटर लेवल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। और लीव्स जो होते हैं टाइम टाइम पे निकलते रहते हैं और सूखते रहते हैं, फॉल होते रहते हैं जैसे जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है जलकुंभी, आइकोरोटिया क्रैस्पिस। आप लोग देखे होंगे किसी भी नदी नाले में। और दूसरा है स्टाल्विनिया स्पीसीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी हैव कवर द टॉपिक। फर्स्ट हमने देखा बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वीड, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड। देन आफ्टर वी सॉ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। फर्स्ट वी सॉ बेस्ड ऑन आपका उसका ऑन्टोजेनी पे, लाइफ स्पैन पे। देन आफ्टर वी हैव सीन ऑन बेस्ड ऑन their origin, based on their cotyledon, based on their morphology, based on that immersed in water. So you will be studying this topic very carefully and nicely. If you get any kind of problem, then you can comment in my YouTube channel. So again we will be meeting with some next topic in next topic. So thank you very much, all the best.